Good morning, students. How are you? I hope you are fine and doing well. Today, I welcome you in our computer class of computer activity in HTML. Students, in previous videos, we have just discussed how to insert images into the web pages, how to resize it, how to change its alignments. After that, we have started what is marquee tag, what are its different attributes, and how to use it. In today's class, we will discuss a web page in which we will insert tables and entering data into them. So, जैसा कि जो कि आप लोग अपने सामने देख रहे हैं, हमने एक वेब पेज बनाया हुआ है जिसके अंदर एक टेबल बनी हुई है। मार्क्यू भी टैग हमने इसमें यूज किया हुआ है। टुडे वी विल डिस्कस इट हाउ टू क्रिएट सच टाइप ऑफ वेब पेजेस। सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसके अंदर है क्या, जो हमारा मेन हेडिंग है वेब पेज का, उसके अंदर हमने जो टेबल इन HTML हेडिंग दी हुई है, इट इज द मेन हेडिंग ऑफ द वेब पेज. इट इज इन हेडिंग लेवल 1 H1 and center aligned. Then we have given marquee tag, its background is yellow and the text is moving just left to right and right to left. We have changed its behavior. After the marquee, I have just designed a small table and the heading of this table is given in the marquee tag, that is students record. In this table I have created 4 columns. These are the columns from top to bottom. First column, the name given is roll number. Second, name. Third, any subject name in English. And fourth column is of maths. And after that we have entered the records or data into it. इस तरह से जो कि हमने वेब पेज को किस तरह से डिजाइन करना है, इसकी कोडिंग क्या होगी, तो उसका जो सोर्स प्रोग्राम है, इट इज द सोर्स प्रोग्राम फॉर दैट वेब पेज. In the beginning, just it is only the starting of the document. Then we have started head portion. In head portion, I have given the center tag to align the heading of the web page in center. This one is heading level 1, that is in H1. Then it is the heading tables in HTML. All these are the container tags and we are also to close this center first. Then H1 first. Heading is over now. Now we have given title only the table that is always displayed on the title bar or address bar of the web page. Then the head portion ends here. उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, ये बॉडी बेसिक कलर पिंक, मीन्स इसकी जो बॉडी की बैकग्राउंड है हमारे वेब पेज की, उसको हमने चेंज करके पिंक कर दिया है. देन BR to move in the next line. After that I have used a larger font size than default. Default is 3, but I have here used the font size 5, the third last of the font sizes. After it, this is the marquee. I have given its all attributes here only to revise how to insert marquee. स्टूडेंट्स, हमने जो मैंने मार्क्यू टैग का यहाँ पर यूज किया है, वो इसलिए यूज किया ताकि जो हमने लास्ट वेब पेज किया था, जो मार्क्यू हमने इंसर्ट किया था, उसके हाइट विड्थ कैसे चेंज करनी है, उसका बिहेवियर कैसे हमने इसको अप्लाई करना है, उस ताकि आपको रिवाइज हो जाए, अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लें, आप लोग इसको भूलें ना इजीली. और उसके बाद क्या था, जो हमने इसमें टेक्स्ट डाला है वो यहाँ पर जो है ये आपका टेक्स्ट है जिसके अंदर हमने दिया हुआ है स्टूडेंट्स रिकॉर्ड दैट इज मूविंग इन द मार्क्यू. देखिए जो ये है, ये हमारा हेडिंग मूव कर रहा है, जो टेक्स्ट हमने दिखाया है वो ये मूव कर रहा है. उसके बाद जो आता है, वी हैव जस्ट क्लोज मार्क्यू बिकॉज मार्क्यू इज आल्सो अ कंटेनर टैग एंड वी आर टू क्लोज इट. आफ्टर इट, what is the new for today, that is this table tag. Tables are basically used to organize data of a web page. It arranges the data in the form of different rows and columns. जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो टेबल्स हमारी यूज होती हैं
हमारे वेब पेज का डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, और ये हमारे डाटा को रोज और कॉलम्स के अंदर ऑर्गेनाइज करती है। उसका जो फॉर्मेट जो है कॉलमनर और रो वाइज हो जाता है। जो टेबल टैग है हमारा, इट्स आल्सो अ कंटेनर टैग। व्हेन वी विल एंड द टेबल वी आर टू क्लोज इट। उसके बाद टेबल की जो डिफरेंट हमारे डाटा इसके अंदर है वो कौन कौन सा है, ये देखिए। जैसे हमने दिया हुआ है रोल नंबर, इट इज द हेडिंग ऑफ द कॉलम फर्स्ट, देन नेम इज द हेडिंग ऑफ कॉलम नंबर 2, थर्ड इंग्लिश इज द हेडिंग ऑफ कॉलम नंबर 3 एंड मैथ्स इज द हेडिंग ऑफ कॉलम नंबर 4। हमने उसको जो है कैसे डिफाइन करना है वो देख लीजिए। सबसे पहले जब हमने, ये हमारा है टी आर टैग। टी आर मीन्स टेबल रो। अगर जब भी आपने टेबल की रो बनानी है तो आपने जो है इसका यूज करना है टी आर टैग का। टी आर टैग की जैसे ही आपने टेबल को जो है जनरेट किया, टेबल की फर्स्ट रो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी। उसके बाद हम उसमें चाहते हैं कि टेबल जो है उसकी हेडिंग बने टी एच, दैट इज द टेबल हेडिंग इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस टी एच। ठीक है, टी आर और टी एच भी दोनों जो है कंटेनर टैग्स हैं, उनको जो है हमें बार बार क्लोज और ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद हमने डाला रोल नंबर, क्योंकि फर्स्ट हेडिंग डाली है, फर्स्ट कॉलम की हमने रोल नंबर डाला था, तो टी एच हमने लिखा और उसके बाद टी एच को यहाँ पर क्लोज कर दिया, क्योंकि जो है हमारा ये कंटेनर टैग है। जो फर्स्ट कॉलम की हेडिंग है उसके लिए ये कुछ आप लोगों को करना है। उसमें क्या क्या आता है, टी एच टैग, उसके बाद रो की जो हेडिंग आप लोगों ने देनी है वो डालना है, और उसके बाद आपने इस टी एच को क्लोज भी करना है, बिकॉज इट इज द सेपरेट टैग और सेपरेट कॉलम। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनाना है, मींस नेक्स्ट कॉलम की हेडिंग बनानी है। उसके लिए अगेन वी हैव टू स्टार्ट टीएच। टीएच को स्टार्ट, टैग को हमने स्टार्ट किया, फिर नेम उसकी हेडिंग डाल दी, और फिर यहां से ये टीएच को क्लोज कर दिया। अब कंप्लीट आपका बन गया टीएच टैग, देन नेम और टीएच क्लोज। आफ्टर इट द थर्ड कॉलम दैट वी हैव डिजाइंड, दैट इज टीएच अगेन, then English or TH close. After it, for the fourth column, that is TH, then name of the column heading, that's math, and TH close. You can also define more columns as per your requirements, but whenever you want to stop writing the top headings of the columns, then you are to use this TR close tag, क्योंकि हमने यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में हमने रो को स्टार्ट किया और यहाँ ला करके हमने जो है जो हमारे टेबल की जो फर्स्ट रो है हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब हमने नेक्स्ट रो में जाना है, तो नेक्स्ट रो का जो कि हमने फिर अगेन टी आर यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो नेक्स्ट लाइन में जब जाएंगे टेबल की, तो यहाँ पर ये देखिए टी आर अगेन हमने डिफाइन किया। अब एक और नया टैग आ गया टी डी। टी स्टैंड्स फॉर टेबल और डी स्टार्ट्स फॉर डाटा। जो टेबल के अंदर में डाटा डालना है उसके लिए टी डी टैग हमारा यूज होगा। तो सबसे पहले हमने रोल नंबर देखिए, फर्स्ट रोल नंबर के लिए हमने लिखा टी डी 1, मीन्स रोल नंबर 1, और ये टीडी को क्लोज कर दिया। फिर सेकंड कॉलम में डालना है हमने, फिर ये टीडी स्टार्ट किया, मीन्स डाटा फॉर द सेकंड कॉलम, दिस इज टीडी नेम ऑफ एनी स्टूडेंट, देन टीडी को हमने यहाँ पर ये क्लोज किया है, इट इज द सेकंड कॉलम डाटा। देन उसके बाद हमारा आता है टीडी, वी हैव गिवन द मार्क्स ऑफ इंग्लिश दैट इज 89 एंड टीडी क्लोज। आफ्टर इट देन कॉलम नंबर 4 एंड डाटा इज 95 एंड टीडी क्लोज एंड टीआर क्लोज। तो ये स्टूडेंट्स देखिए हमारा यहां से लेकर के और ये यहां तक हमारी हो गई सेकंड रो ऑफ टेबल। सेकंड रो ऑफ टेबल को हमने यहां पर क्लोज कर दिया। फिर इसी तरह से हमने नेक्स्ट जो रो स्टार्ट करनी है वो यहां से स्टार्ट की, टीडी डाल के रोल नंबर 2 डाला हमने सबसे पहले, फिर सेकंड के लिए ये नेम डाल दिया आर्यन। आफ्टर इट वी हैव गिवन द मार्क्स ऑफ इंग्लिश, then we have also given the marks of maths, and after it the TR close. Now this is the row number 3 that we have created. Now the row number 3 is this one, like that which you have done. You can create as many number of columns or as many number of rows as per your requirements, but you have to follow such type of things. सबसे पहले जो कि आप लोगों ने टेबल की रो बनानी है उसके लिए हमने यूज करना है TR, हेडिंग्स बनानी है उसके लिए यूज होगा टैग आपका TH, जो टेबल का डाटा डालना है उसको होगा आपका टीडी टैग। तो इन सभी के लिए जो है इस तरह से आप लोगों ने ये डिफरेंट जो टैग्स हैं, all these tags are work together to make a complete table. How to insert all these
you are to use all these. Now I am displaying you after it the creating different rows and columns. This is just closing of table tag. After it the closing of body tag and this is the closing of HTML document. तो जो हमारा ये सोर्स कोड है इसका आउटपुट हमारा ये वाला आया हुआ। तो इस तरह से जो है आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपके दोनों टैग्स जो है रिवाइज हो जाएंगे, मार्क्यू टैग भी और आपका जो है ये टेबल टैग भी। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या आपका आता है, क्योंकि अभी जो है हमारे पास देखिए टेबल के अंदर ना हमारे पास कोई इसका इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स जो हमने अभी नहीं डाला है, क्योंकि इट विल बी द लार्जर वीडियो बिकॉज इन द नेक्स्ट class we will discuss about the further attributes of body tag. But if you want to create a table, then you are to keep in your mind first tag is table, then tr, th and then td. This is the combination of 4 tags. All these 4 tags are container tags. We are to start them and we are to close them. तो इस तरह स्टूडेंट्स क्या है, जो भी जब भी आप लोग टेबल बनाते हैं आप लोगों को 4 एट्रीब्यूट्स जो है 4 टैग्स ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले टेबल, इट विल डिफाइन द टेबल, देन tr is basically used to define the table row, th is used to define the table headings, and td is used to insert data into the different columns which you have created in a table. And every row starts with tr and ends with close tr. So like this you can use it and you can just apply it. Friends, अब आपने जो है एक वेब पेज बनाना है जिसके अंदर आपने मार्क्यू टैग का भी यूज करना है और एक टेबल बनानी है विच विल कंटेन 5 कॉलम्स एंड 5 रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स और कॉलम्स कौन कौन से हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं। जब आप लोग देखिए लेफ्ट टू राइट हेडिंग्स डालते हैं, दीज आर द कॉलम्स, मीन्स रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, मैथ्स, दीज आर द कॉलम्स एंड देयर नेम्स. And the rows means when you will enter record into just below the headings, these are known as records. जो ऊपर से मैथ्स के मार्क्स जो हैं ऊपर से नीचे की ओर, ये आपके कॉलम्स है। इंग्लिश है, इंग्लिश कॉलम ये वाला कॉलम है, इंग्लिश के मार्क्स। नेम कॉलम है, उसके मार्क्स ये वाले हैं। बट जब आप लोग रोल नंबर 1 को डिफाइन करते हैं और उसके सामने जो वैल्यूज आती हैं, इट इज अ रो। स्टूडेंट्स, इस तरह से जो है आप लोगों ने रोज और कॉलम्स को डिफाइन करना है और डिस्प्ले करना है। ओके स्टूडेंट्स, that's enough for today. Okay, thank you and have a nice day.